Hi everyone, welcome to the channel. It's 2 days after I fell sick and I'm so done with my bimari because 2 दिन से I was having a fever and I puked once the food that I ate because I ate rice जो कि नहीं खानी चाहिए evidently when you are having an upset stomach, but I did eat it and I ended up getting sick for 2 days. And today also I don't feel very good. I feel pretty weak, but I think we can go through this together. I'm just recording it because I want some form of accountability to myself so that there's someone watching me, and camera is that someone. Anyways, talking about my mind, how I've been feeling very depressed, very disappointed, and especially my academic validation seeking mind has been so regretful past 2 days for wasting time and for not actually studying. It's not a big deal, 2 दिन नहीं पढ़ना is not a big deal, but अगर आपका entrance exam है तो it is a big deal. So today I'll try to make amends for what I couldn't do in the 2 days, and I'll probably be doing some productive stuff. आज मैं थोड़ा सा workout session भी करने वाली हूँ. It's not a proper workout, it's like a yoga form of workout, because workout sessions के लिए you need like a lot of energy, especially the Zumba workouts or whatever, the cardio and all that. उस सब के लिए I need a lot of energy, and yoga के लिए I need comparatively less energy, so I can pull that off. तो मैं वो करूँगी. I'll probably apply some sort of mask to my hair, and then I'll go wash my hair, and उसके बाद I'll be studying a lot because आज पढ़ने की ज़रूरत है. इतने दिन से ना पढ़ के my mind has been blown by the syllabus. It sometimes just hits you when you're lying, when you're doing nothing, when you're idle, and suddenly you realize that इतना सारा syllabus आ रहा है and I haven't done even a fraction of it. तो तब you kind of regret doing what you're doing, or sitting idle or being sick. In fact, that is what was happening with me, and that is how I've been feeling. Let us just start the video without any further ado. And I just want to say that if you haven't subscribed to my channel, then do right now and watch this video until the end to know how my day goes and if I actually complete all the things I'm ranting about here. That is it. Let's start the video. Firstly, I started off with some exercise, and ये first last day था जब मैंने exercise की. उसके बाद मैंने नाम भी नहीं लिया exercise करने का, because I can never be consistent at exercising. This is something that I've observed about myself since so many years, because I've tried a lot of times. ऐसा नहीं मैंने try नहीं किया, but मुझसे होता ही नहीं है. तो इस पर्टिकुलर डे पे आई वाज स्टार्टिंग हिस्ट्री. सबसे पहले बुक 1 में पढ़ रही थी बिकॉज वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है. मेजर पोर्शन MCQs का बुक 1 से बन सकता है, चांसेस हैं बहुत सारे. इसलिए मैंने पहले वो बुक अच्छे से रीड की. मैं सोर्सेज भी रीड कर रही हूँ फॉर दोज ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET एंड हु आर अपीयरिंग फॉर सब्जेक्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटीज़. सोर्सेज काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एंड इवन द बॉक्सेज ऑन द साइड आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं वही सब रीडिंग कर रही थी. आई वॉज अंडरलाइनिंग स्टफ एंड जस्ट नॉर्मल बेसिक बोरिंग स्टफ. देन आई हैड दिस बटर मिल्क विच वॉज़ वेरी वेरी यमी. उसके बाद मैंने बुक 2 निकाली. इसमें एक चैप्टर है जिसमें कि सारा ट्रैवलर्स के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, एंड उसमें से अगर आप MCQs देख लोगे किसी क्वेश्चन बैंक में से उठा के, दे आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. गॉड नोज़ कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, बट इट इज़ वॉट इट इज़. मुझे समझ नहीं आ रहा है हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम, बिकॉज सिलेबस इतना वेग लगता है देखने से. देयर इज़ नथिंग सर्टेन, कुछ सर्टेनिटी इसमें है ही नहीं. स्पेशली इंग्लिश और जनरल टेस्ट में एक बार को डोमेन्स में आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये आ जाएगा वो आ जाएगा, बट यू कांट रियली डू द सेम फॉर अदर 2 सब्जेक्ट्स. सो दैट इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू. मैं कुछ इसलिए एडवाइस भी नहीं कर रही हूँ अभी, बिकॉज आई एम माई सेल्फ फिगरिंग आउट थिंग्स, एंड इट इज़ नॉट वेरी वाइज टू एडवाइस विदाउट एनी नॉलेज. इसके बाद मैंने बुक 2 का लास्ट चैप्टर किया विच इज़ किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, एंड इसमें जो टर्म्स हैं इतने ज़्यादा टफ हैं. आई एम टेलिंग यू दिस इज़ द वर्स्ट चैप्टर ऑफ ऑल द 3 बुक्स. तो मैंने ये कंप्लीट किया. एक लेक्चर भी देखा था मैंने, बिकॉज बिना लेक्चर के कंप्लीट करना इज़ अ लिटिल टफ फॉर मी, एंड दैट इज़ इट. 6:30 हो गए हैं और ये चैप्टर का मैंने वीडियो ख़त्म कर लिया है. पूरे 2 घंटे लग गए सिर्फ वीडियो देखने में. अब आई एम गोना गो एंड रीड द NCERT लाइन बाय लाइन, बिकॉज ये भी ज़रूरी है. NCERT रीड नहीं की तो पूरा फ्यूटाइल हो जाएगा मेरा वीडियो देखने का एफर्ट. सो आई एम जस्ट गोइंग टू रीड माई NCERT. और मैंने फोकस कर लिया, रिमूविंग दिस अगली सी पेंसिल फ्रॉम हियर बिकॉज इट डजंट लुक वेरी गुड.
इतना चैप्टर आई हैव रेड 5th पार्ट तक. 5th से आगे मुझे रीड करना है, तो ऑफ कोर्स 5 पार्ट्स रहते हैं रीड करने. वी गोना बी डूइंग दैट. उसके बाद आई विल शिफ्ट टू इंग्लिश बिकॉज हिस्ट्री से मेरा मन उठ चुका है इस टाइम पे. आई रेड दिस चैप्टर फ्रॉम NCERT एंड उसके बाद आई डिड शिफ्ट टू इंग्लिश. हिस्ट्री में मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पिक्चर्स करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. इफ़ एनी ऑफ़ यू गाइज हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग द पिक्चर्स, तो जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैं पिक्चर्स करूँ या फिर नहीं करूँ, बिकॉज आई एम वेरी वेरी कन्फ्यूज्ड. उसके बाद आई स्टार्टिंग इंग्लिश. इंग्लिश में आई एम रीडिंग दिस बिग एस बुक जिसके अंदर थोड़ी बहुत वोकेबलरी गिवन है एंड इट इज़ नॉट हेल्पिंग मी रियली, बट इट्स फाइन. मतलब ये काफ़ी मोटी बुक है, बट एग्ज़ाम तक मैं इसको कर ही लूँगी. एंड रिसेंटली डेट शीट आई है एज आई एम एडिटिंग दिस वीडियो. आज 22 अप्रैल है एंड डेट शीट आ चुकी है. इट्स इनसेन गाइज. मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था. मैं बहुत होप कर रही थी कि पोस्टपोन हो जाएगा एग्ज़ाम, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ एंड एग्ज़ाम फाइनली हो रहा है 15 मई से. आई थिंक दैट वॉज ऑल आई डिड ऑन दैट डे. शाम को मैंने सारी पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर ली थी एंड मैं छत पे गई थी. इट वॉज़ वेरी वेरी सीरीन, वेरी वेरी पीसफुल. 6 आवर्स कंप्लीट करने के बाद पूरा सेटिस्फैक्शन मैंने अचीव कर लिया था. लेकिन अब मुझे ये 6 आवर्स भी कम लग रहे हैं व्हेन आई एम एडिटिंग दिस, बिकॉज अब 6 घंटे से काम नहीं होगा यार. अब क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं. दैट इज़ द करंट रिक्वायरमेंट. बस मैंने उस दिन यही किया था. और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी then just do subscribe to my channel, like कर देना and comment something, comment down this emoji if you like the video and don't forget to watch my other videos. मेरी boards के ऊपर भी series है. Watch all the videos and stay tuned for more. Bye bye.